next session of this particular topic, proof of concept, commercialization of the idea for the purpose of startup. So this particular session is in continuation of my previous session that was held yesterday morning on technology readiness level. So out of that topic, this is a very micro part where we would like to focus some quite clear light that how to think on this particular issue and how to take up this issue and how it can transform the startup journey in form of creating the value to the customer, right? So in yesterday discussion, somewhere at some point of time, I mentioned the word innovation that was basically defined in very layman language, creating value through newness, right? And this creating value through newness would be measured by different startups as per their own expectation and their own analysis, and then their fitness in the job, that how to create the difference that can create value to the customer and create demand in the market, right? So normally, as I was discussing with sir right now, on the part of his entrepreneurial journey, he is dealing in mechanical engineering domain, along with some from molding to its final delivery to the industry. And his product diversification of hydro energy to mechanical energy to electricity to normal industries and any other kind of mechanical process, he is taking care of solution providing part in all such diversification based on his own learning and competency and diversification of the team skills. So before going to take up these challenges, first of all, he used to evaluate that whether you be take up the challenges or not. If challenges are about to meet the expectation of the customer as well as about in the consideration of the startup, his own competency, his team competency, and its other resources available to deliver the solution, then definitely there is possibility to bring out certain solution, and that particular solution comes under this incremental innovation theory. Because until unless the startup cannot assess his own potential in terms of its resources, capability, past experiences, customers' need, and capability to bring out that requirement which is demanded by the customer or demanded by the market, would not be taken, it would not be catered into in the form of process. Hence, the analysis of all such situations are definitely necessary at the startup end, and the outcome of that particular delivery in terms of creating value to the industrial solution or customer specific solution or market specific solution would be evolutionary in nature. जिस चीज का सोल्यूशन आज दे देंगे, ऐसा नहीं कि उसका सोल्यूशन कल नहीं आएगा और कुछ एडवांस तरीके से आएगा, समय बीतने के साथ कुछ और एडवांस तरीके से आएगा। इस तरह के समय के ऊपर निर्भर होते हुए जो एडवांसमेंट है वो इवोल्यूशनरी इनोवेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा इसका पिक्चर ये है कि कब ये इनोवेशन को बोलेंगे कि इवोल्यूशनरी है। नॉर्मली जब हम कोई मार्केट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई जब प्रोडक्ट बनाते हैं, बंद करा है लाइट उधर वाला प्लीज स्विच ऑफ लाइट वहां से नॉर्मली ये वाली लाइट और दो आगे वाले नहीं उधर वाले एलईडी आप बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं, लाइट सारी बंद कर दो है ना, आगे वाली नहीं हो रही, उधर से हो रही कुछ पीछे से उधर वहां से अरे याद है यस एक और बस यस ऑलराइट। सो नॉर्मली इसके अंदर जो भी इंक्रीमेंटल इनोवेशन के लिए जो स्कोप्स आता है वो आता है हमेशा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन के लिए सॉल्यूशंस पे, जहां पे थोड़ी मतलब एक टेक्नोलॉजी बन गई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो सर्विसेज बन रही है, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम बेसिकली धीरे धीरे जो परिवर्तन करके अलग अलग समय पे जो चीजें ले आते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से, वो आता है इसके अंदर। यानी आप इसमें प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं और मार्केट में डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट को रिफाइन फिर से मार्केट में फीडबैक आता है, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा एक और फीचर उसमें ऐड ऑन किया प्रोडक्ट के अंदर,
फिर उसमें मार्केट की डिमांड को कैटर किया, फिर इसको दे दिया। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको एक सॉइल टेस्टिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल टेस्टिंग डिवाइस बनानी है, जिसमें मोटे मोटे तौर पे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों को अगर आपको बहुत ही क्षण भर में मेजर करना है, ये किसान की बहुत जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में आपने सेंसर बेस्ड कोई आपने डिवाइस बना दी, जिसको आपने मिट्टी में, चाहे वो मिट्टी मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, चाहे बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट हो, जैसा भी आपका डिजाइन आपने प्लान किया हुआ एज एन इनोवेटर या स्टार्टअप, आपने उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप बना करके एक छोटी सी डिवाइस बनाई, जो आधे घंटे, 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर मिट्टी की एन और एन, पी और के सोल्यूशन दे दे। ये आपका हो गया ग्रास रूट इनोवेशन। ठीक है, ग्रास रूट इनोवेशन के साथ साथ जब मार्केट में आपने अप्लाई किया, तो किसानों की जरूरतें और इस हिसाब से बढ़ सकती हैं, नहीं बढ़ सकती हैं, सीधे यूज कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है, मैं उसको आपके सामने रखता हूं। आपने ऐसी डिवाइस बनाई, किसान को बेच दिया, जिसकी कीमत मात्र से 500 रुपए। अभी जो नॉर्मल सॉइल टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो टाइम बाउंड है, और टाइम प्रोसेस जो लगता है कम से कम 1 हफ्ते लगता है। 1 हफ्ते में अच्छा उसका जो सॉइल टेस्टिंग के लिए जो जगह बना हुआ कृषि विज्ञान केंद्र है, और कई ऐसे प्राइवेट सेंटर्स भी हैं जो प्रोफेशनली चला रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी टेस्टिंग की कॉस्ट 500 या हो सकता है फ्री में भी हो, कोई बात नहीं है, कहीं पे 500 रुपए रख लेते हैं, मतलब होता है ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट, भाई आप जल्दी ये पैसे लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। ठीक है, कई प्राइवेट सेंटर्स इसके लिए हजार रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन टाइम जो इनकी टेस्टिंग है वो 1 हफ्ते से कम कहीं पे नहीं है, क्योंकि सभी में केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें और आई, जो जैसे हार्वेस्टो जो है ना, उसने अभी ये लॉन्च किया है। जी हार्वेस्टो की मशीन आती है वहां से, और वो क्या है, टाइम बाउंड नहीं है, वो तुरंत दे रहे हैं उसका, वो तुरंत एग्जैक्टली, आई एम जस्ट कमिंग ऑन। ठीक है, उसमें फिर इसके बाद ये था अपना ओल्ड प्रोसीजर। इसके बाद अब एक फोटोमेट्रिक मेजरमेंट इसके प्रोसीजर आया, जिसमें लाइट इंटेंस, उसकी टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें ये टाइम पीरियड आधे घंटे का आ गया। वो छोटी सी रेडीमेड किट बन के आने लगी, 50,000 रुपए की किट बाजार में अवेलेबल है। ठीक है, और किसी सोशल साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, एग्रीकल्चर सेंटर से, किसी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से वो निकल के आया है, शायद ICAR का सपोर्टेड वो प्रोडक्ट बना हुआ है, 50,000 में आया। अभी एक IIT कानपुर ने बनाया, उसकी सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट 5 मिनट में आया था। सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे किया, मतलब पर्टिकुलरली मैंने किया, इसी TIC फंडिंग लेकर के, उसके रिजल्ट 5 मिनट में आ जाते हैं, और 2017 में किया। ठीक है, हम मार्केट नहीं कर पाए। तो definitely I'm just delivering all this thought based on the experiences, due to the certain limitation, due to the policy issue, or due to other constraint, I may not be able to pose that product in the market, but somebody else who is intended to bring out such kind of solution for the profit making are existing in the market, like that professor who is basically testing this thing based on electrophotometric measurement in and the measurement time is half an hour. अभी IIT कानपुर का भी प्रोडक्ट बाजार में नहीं आया, प्रोटोटाइपिंग स्टेज में ही है। हमारे बनाने के करीब उन्होंने 1.5 साल बाद बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 NP और K की जगह पे 2-3 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर दिए, 7 कंपोनेंट्स को मेजर कर रहे थे, ऐड कर दिए। यस, अब बीइंग एंटरप्रेन्योर, इफ I as an innovator think this thing to marketize the product, then I would be planning for successive steps, that how can I will survive in the market with technology। उसको हम लाते हैं डिसरप्शन काइंड ऑफ इनोवेशन कैटेगरी में। फिर उसमें धीरे धीरे रिफाइनमेंट करके उसमें अपडेट करते मार्केट की टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को और दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट जब बाजार में लाते हैं, वो आ जाता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन के कैटेगरी में। ये आपको एक लंबा प्राइस पे करता है, ये आपको बहुत छोटा प्राइस पे करता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट सेल वुड बी क्वाइट हाई। तो ये भी एक अच्छा, मतलब आप क्युमुलेटिव इनकम देखेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा प्राइस पे करके जाता है, सब्जेक्ट टू यू हैव टू बेसिकली रीच अप टू द राइट कस्टमर। सिंपल। तो मेरा सिंपल कहना, जैसे इस प्रोडक्ट में अभी हमें एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूं कि डेटा तो आ गया मेरे पास, मैं चाहता हूं इसका सीधे इंटीग्रेशन सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ हो जाए। तो हम क्या करेंगे जी सर, वो भले ही सॉइल हेल्थ कार्ड या इसकी बातें करते हैं, किसानों को सब उसकी रिक्वायरमेंट अभी महसूस ही नहीं हो रही, आगे नहीं आ रही। अभी फ्री में जो है ना, उनको सॉइल टेस्टिंग दी गई है जी गवर्नमेंट की तरफ से जी, और उसके बावजूद भी नहीं आते वो, और हम लोग उनको काफी कोशिश कर रहे हैं एज ए सीड
processing unit, we are making them aware about these things, but वो नहीं आ रहे। Right. उनसे कहते हैं कि आप आइए सॉइल टेस्टिंग कराइए, आपकी फ्री में कर देते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने खाद डाला है वो जी, उनको लगता है यहाँ 25, तो उसके माइंडसेट में ये आ गया कि मुझे भी इतना डालना है, नहीं तो मेरी फसल कम हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली अवेयरनेस की वो भी एक और चीज सेगमेंट में ज्यादा फ्री है, सॉइल हेल्थ कार्ड हो रहा है, सारी बातें, पर वो उसमें आ नहीं पा रही है प्रॉपर। मैं उस पे आता हूं, उसमें कई चीजें और इंटीग्रेटेड है। नहीं सर, अगर आप उसको मोबाइल से लिंक कर दें, मैं इसी एग्जांपल को मैं प्रॉपर्ली अब लेकर के एक्सप्लेन करता हूं पूरे सेशन में, क्या क्या पॉसिबिलिटी मैं कुछ एक चीज इसमें क्या करते हैं। जो मोबाइल रिवॉल्यूशन है ना, मोबाइल रिवॉल्यूशन ने पब्लिक को ऐसे सेंसिटाइज किया है कि हर चीज उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो गया है। वो तो नॉर्मल जो सिटीजन है एंड इस पर्टिकुलर जैसे हम फार्मर की बात करते हैं, दे आल्सो एक्सपेक्ट सीड एट देयर डोर स्टेप, फर्टिलाइजर एट देयर डोर स्टेप, सजेशंस एट देयर डोर स्टेप, राइट, सपोर्ट एट देयर डोर स्टेप। अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, अभी ये तो वैसे हो गया कि हमने बीसीजी का टीका लगवाया था, ये वैक्सीन है, क्या करें उससे फायदा हमें। हम इसे केवल बताता कि भाई हमें वैक्सीन कभी लगा था, वो वैक्सीन की जरूरत एक बात थी। सॉइल टेस्टिंग तो हर 3 महीने में चाहिए, लेकिन ये नीड एक्सप्लेन करने के लिए कोई एडवाइजरी उनके पास नहीं है, नहीं कोई हमारे पास कोई चैनल है, नहीं कोई हमारे पास एक्सटेंशन सर्विसेज है। ठीक है, इस नीड को पहले हमें कैटर करके वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आती है दो चीजें, ये दो फील्ड का एक सर मैं बात करूंगा सर वाली बात से जोड़ के। जी जी, एक्चुअली ऐसे एक्सपीरियंसेस लोग नहीं शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने अपने खेत की सॉइल टेस्टिंग कराई, उसके हिसाब से इन्होंने बैलेंस फर्टिलाइजर्स यूज किए और इनकी यील्ड पिछले बार से सपोज 25% बढ़ गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस कहीं शेयर ही नहीं हो रहा। अगर वो शेयर होने लगे तो फर्क आएगा। नहीं सर, मैं अब आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने ट्रायल किया एक को के साथ में। हम बहुत ओपन डोमेन के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसकी पहले छोटी सी और बची है, सब्जेक्ट हो जाए है ना, ये क्योंकि हमने जब कंप्लीट होगा तो फिर डिस्कशन का मजा आएगा। तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, फार्मर्स की जरूरत एक तो क्या है कि उसके पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जो आराम से उसके हाथ में, जो सस्ता हो, जो रोबस्ट हो, जो खराब ना हो, मतलब जब वो इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल पे वो अवेलेबल हो। ये एक उसकी इंस्टेंट जरूरत। दूसरी जो उससे जो सूचना मिल रही है वो उतनी एक्यूरेट है जिसपे वो भरोसा कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये 4 बातें हैं। और उसमें से बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग इंजीनियर, बीइंग टेक्नोलॉजिस्ट और बीइंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल, हम क्या दे पा रहे हैं उनको, ये एक सोचने का विषय है। ये अच्छा, ये जितने भी डोमेन हमने नाम लिए हैं सब के सब आइसोलेशन में। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अपने में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाला आदमी अपने में काम कर रहा है, मैनेजमेंट वाला आदमी अपने में काम कर रहा है, पॉलिसी मेकर्स अपने में काम कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स को डेटा जो जा रहा है वो ग्रास रूट के उन पर्सन से जा रहा है जो फार्मिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या हमने जो इस मामले में थोड़ी सी एक्सटेंशन सर्विसेज जो एग्रीकल्चर फील्ड का जो अप्रोच मेरे को तो और प्रैक्टिकल लगा, वो क्या करते हैं, फार्मर्स की उन्होंने कम्युनिटी बना रखी है। उस कम्युनिटी में जो लीड फार्मर है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी बात नॉर्मली दूसरे फार्मर मानते हैं, है ना। जो फार्मर्स का चौधरी, आई वुड से चौधरी मींस जो हेड है ना, मोटिवेटर है ना, नॉट इन नेगेटिव सेंस। तो वो उस क्या होता है, उस सीनियर मोस्ट जो एक्सपीरियंस है, जो लीड है, जो एक्टिव फार्मर है, उसको हर टेक्नोलॉजी देके हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। लेकिन उसकी अपनी अलग लिमिटेशन है, बिकॉज एवरीवेयर कंपटीशन एग्जिस्ट। Normally he will not share the actual information which he has used. Exactly. Right. So this competitiveness can be encountered by creating oligopolistic competition among the team. 5-7 आप एक गांव में दीजिए ना, इतनी हमारी एज ए पॉलिसी मेकर, एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी क्षमता नहीं है कि हम 50-50 हजार की डिवाइस 5 लोग को दे पाए। कहीं नहीं, वो भी लिमिटेशन है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग स्टेज में। सैम्पलिंग स्टेज में दूसरी चीज, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट में अगर दूसरा किसान चाहे तो उसको सामान नहीं मिलेगा। ये टेक्निकल इश्यूज है। ये वैसे ही इशू है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। ये ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सिचुएशन में क्या है कि अभी घर घर में लाइट अवेलेबल है। लोग जो चार्जिंग आधे घंटे में हो सकता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसकी जगह लोग 8 घंटे में अपने घर पे चार्ज करके यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन बड़ी व्हीकल अभी भी दिक्कत है, उसको शहर से अगर 500 किलोमीटर दूर ले आना हो तो पता नहीं वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चार्ज कहाँ करेगा। चाहता सब है, हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन बेस्ट एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए भी फ्रेंडली है। बट छोटी सी समस्या है सॉइल टेस्टिंग।
वेस्ट अननेसेसरी 500 जिसमें एक बोरी हमारा यूरिया आ सकता है और उसकी रिलायबिलिटी इंश्योर नहीं है। अब जब मान लीजिए इतनी चीजें हम कर लेते हैं, ये फार्मर की 4-5 समस्याएं जो हैं, टेक्नोलॉजी, उसका यूज, रोबस्टनेस, एक्यूरेसी, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे अगर करेक्ट आते हैं तो इसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी, इतनी चीजों को अचीव करने में पीछे इतने सारे लोगों को आपस में इंटीग्रेट होकर काम करने की जरूरत है, इतने डिसिप्लिन के लोगों को, वो टीम शायद बनना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है तो इसका ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं आ सकता, ये लोग मिल जाते तो जो काम 4 साल में होना शायद वो काम 3 महीने में हो जाता। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तब तक नई चीजें दूसरी कंट्रीज से, दूसरे प्रोड्यूसर्स सब लोग लेकर के चले आते हैं। What happened in the case of mobile field? The same technological revolution happened in 2001 when Reliance brought this phenomena of 500 rupees mobile phone to the all rickshawalas. Rickshawala means I'm simply targeting to all those stakeholders whose income is very less. सबके पास 500 रुपए का मोबाइल आ गया, उसमें एक और एड ऑन फैसिलिटी थी जो आज की मोबाइल में अभी भी नहीं है कि आप 30 पैसे पे करके आप मोबाइल का जो पावर है ना, पावर को भी चार्ज कर सकते थे। लेकिन वो आते ही 5-7 महीने, 1 साल के बाद उस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंसर्न। आज भी उस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? कंपनीज आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सर्टेन अनदर एवेन्यूज टू गेट दिस फैसिलिटी टू ऑल द यूजर्स। भाई इनका मोबाइल कहीं मूव कर रहे हो, किसी पास चार्जर नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन एक बटन क्लिक करते हो चार्ज हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी सोल्यूशन नहीं निकला है, व्हाट बिकॉज़ एनवायरमेंटल कंसर्न इज इन पिक्चर। तो अगर वो चीज, इसका मतलब कि जो कंपनी है, जो रिलायंस है, उसने पूरी की पूरी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग करके चली। सिंस दे आर इंटरप्राइजेस, they can accommodate all such professional into one and they can bring out a foolproof solution to the customer. So it means at this stage there is need of a startup who can bring all such professional into one and they can bring out this kind of soil testing kind of facility from field to ultimately cloud storage. तब जाकर के उनको एक सोल्यूशन मिल पाएगा। और हमने अभी तक मतलब पिछले 6 साल में मैं बात कर रहा हूँ, अपने होशो हवास में कोई भी ऐसा बी प्लान कंपटीशन मेरे नजर में नहीं आया, चाहे ऑनलाइन मैंने खोजा हो, चाहे जहां पे मैं विजिट किया हूं, कि इस तरह के होलिस्टिक अप्रोच से कोई स्टार्टअप आया हो जो इस तरह की ग्रासरूट समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। इंडिविजुअल एफर्ट हर इंस्टीट्यूशन में चलता है, हर इंस्टीट्यूशन में स्टार्टअप के सेंटर्स खुले हैं, हर इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन के हब्स बना रखे हैं, गवर्नमेंट की अच्छी फंडिंग आ रही है, पॉलिसीज है, मेंटर्स हैं, फील्ड से सपोर्ट भी है, बट कहीं ना कहीं अप्रोच मिसमैच हो रहा है ना, कन्वर्जेंस की कमी, यस, इंटीग्रेशन की कमी आ रही है, एक्चुअली कन्वर्जेंस, एग्जैक्टली, कैन बी से, है ना। सो सवाल ये उठता है कि यहां से इन दोनों सिचुएशन में हाथ कौन डाले, हाथ क्यों नहीं डाले, ये भी सोचने का विषय है। प्रॉफिट कितना होगा, जिस मार्जिनल फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं वहां से प्रॉफिटेबिलिटी किसको बहुत कम है, ये बहुत बड़ा रीजन है जी। सर एक चीज में फर्क है, फर्क ये है कि फार्मर्स अभी भी मोर और लेस ट्रेडिशनल, यस, 50% पॉपुलेशन कवर करता है, तो छोटी बड़ी जमीन छोड़ जी दीजिएगा। जी जी जी। मैं कहता हूँ अगर आपकी इन्वायरमेंट अगर आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ भी है जी, तो उसका आप 50% में कितने हो गए, 50 करोड़ बहुत, ठीक है। अब अगर आप हर एक से, मैं कहता हूँ महीने में, उसे से महीने में 1 रुपया एक फार्मर से भी कमाए तो आपने कितना कमाया, बहुत हो गया ना सर। तो मुद्दा ये कि हम उस वाले फैक्टर पे नहीं जा रहे, तो मुद्दा हम जो कॉस्ट के संग प्रॉफिटेबिलिटी है, देखिए रिलायंस का जो आपने एग्जांपल दिया, रिलायंस ने उसी चीज को चर्न आउट किया जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसी पे आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अब मैं इसके जो छोटे से समस्या में उस पे आता हूँ। बड़ी कंपनीज whose turnover are in thousands of crores, they can involve their own fund for this income, and all these companies are basically coming into retail marketing. जियो आ गया ना, जियो फ्रेश कपड़े के बिजनेस में आ गए ना, पहले तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आते थे, सभी लोग रिटेल पे आ रहे, क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टअप अगर इस लेवल पे उतर के आता है, स्टार्टअप इस लेवल पे उतर के आता है, तो स्टार्टअप पे इनिशियली उसको इन्वेस्ट करना है, प्लस इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उस अवेयरनेस फैलाने के लिए दैट फेलो हैज टू इन्वेस्ट ह्यूज। वहां पे प्रॉब्लम है, बड़ी कंपनी सोल्यूशन लेके आ जाएगी पहले। सर इसमें दो चीज है, एक तो क्या है, इसमें फार्मर्स के माइंडसेट से उसको लड़ना है जी, पहले स्टार्टअप को जी, क्योंकि वो जो उनको लगता है कि ज्यादा मैन्योर फर्टिलाइजर डालने से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो फर्टिलाइजर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं कम करके, तो उनको वो क्यों कहेंगे कि कम डालो।
एब्सोल्युटली। आप समझो सबसे बड़ी बात तो उनके साथ भी है कि उनको मोर प्रोडक्शन देना है। आज क्वालिटी जो है वो जो फर्टिलाइजर्स की है वो धीरे-धीरे डिप्रिशिएट हो रही है। डिग्रेड हो गई है। और वो क्या कर रहे हैं कि उस चीज को लेके, क्योंकि उनको उससे बिजनेस मिल रहा है, तो वो क्यों कहने लगे कि आप ये लेके आइए इससे कम होगा, इसीलिए सॉइल टेस्टिंग को सिरे से दबा दिया गया। आप ये सब सिरे सॉइल टेस्टिंग की कोई बात नहीं करता था। और अभी गवर्नमेंट ने जो फ्री सॉइल टेस्टिंग के लिए व्यवस्थाएं भी है ना, उसको भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अदरवाइज सर आपकी उसका मैं एक छोटा सजेशन दे सकता हूँ। सपोज आप ट्रिपल आईटी में आपने कोई काम किया और किसी को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, आपके संग पता है सर प्लस पॉइंट क्या है? इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आप जब चाहे तब जोड़ सकते हो। सही बात है। सुनिए सर, और वो आपके लिए हर जगह पे एज ए मैसेंजर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी चीज उनको क्लिक करे। और हमारे पास एन नंबर के स्टूडेंट्स हैं। अभी आप मुझसे कहें, मेरे को 10 साल टीचिंग में हुए, 15 साल, मैं इंडिया के लगभग हर कोने के कोई ना कोई स्टूडेंट को जानता हूँ। और सोशल मीडिया के टाइम में और आपकी सब चीजों उसका स्प्रेड करना मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम वही है जो आपने बोला, क्या वो रियली वायबल और उस हिसाब से है? बिल्कुल। और जो सर ने बात कही वो भी सही है। पहले लोग पानी पिलाना पुण्य काम समझते थे। हर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास एक हैंडपंप होता था, तो पानी बोतल का बेचने वालों ने वो हैंडपंप भी उखाड़ दिया। इससे आप बिल्कुल सही बात है सर। मैं अब थोड़ा सा चीज बताना चाह रहा था कि जो आप कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था इफ्को ने और एयरटेल। इफ्को किसान संचार करके इन्होंने एक नेटवर्क बनाया और इसके जो है हेल्पलाइन सेंटर बनाए। अब ये क्या है कि इन्होंने सिम दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी, 3 मंथ डेटा दे दिया कि आपको फ्री में कोई चार्ज नहीं। लेकिन साहब एक बार यूज करना शुरू एक बार उन्होंने यूज किया, दोबारा किसी ने उसको मोबाइल को रिचार्ज ही नहीं किया। रिचार्ज नहीं किया। अब उसकी विशेषता क्या थी? वो एनिमल, आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मंडी भाव, उनकी 3 दिन में मैसेज आते थे और वो फोन भी आते थे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। मैंने पूरे संभाग में मैं देख रहा था काम, और मैंने पूरे संभाग में विजिट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि कोई उस मोबाइल को रिचार्ज नहीं कराया, उस दोबारा किसी ने रिचार्ज ही नहीं कराया। और जब तक फ्री में चली तब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। किसान को क्या है कि सब चीज फ्री के खाने की आदत पड़ गई। सर ऐसा है, हम लोगों ने क्या है, सीड प्रोसेस करते हैं, तो सीड को अच्छी तरीके से, ये सारे इंपॉर्टेंट, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज ये जो छोटी-छोटी इनपुट्स है ना, इट इज नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स, इट इज इन जनरल, ये नोट करने का विषय है। ये कल्चरल इशू है, जो अभी सर ने बोला ना, ये कल्चरल इशू है कि हमें फ्री में मिलेगा तो हम जहर भी लेने के, भले वो जाके घर पे एक्सपायर हो जाए। दिस इज मेंटालिटी। ये सर उसके लिए जब सीड हम ये भी ट्रेन करें कि इसमें फर्टिलाइजर्स कितना डालना है। हम लोगों ने फ्री में उनको सॉइल टेस्टिंग देना शुरू किया। कई फार्मर्स को शुरू में जोड़ा, उनको हम फ्री में, उससे कहते हैं अपना सैंपल कलेक्ट करके लाओ, हम आपको फ्री में आपकी जांच करके देंगे। उसमें हमारा थोड़ा बहुत तो उसको जांच करने में जो खर्चे थे, हम लोग सोचा कि उसको सीड से हम अकोमोडेट कर लेंगे, उनको फ्री में देते हैं, फ्री मेंटेलिटी के तौर पे। और जब किसान को बीज दिए और अच्छा प्रोडक्शन भी आने लगा, पर मुद्दा वही है कि किसान को ये भी मुश्किल लगता है कि मैं उसको लेके आऊं और ये करूं, क्योंकि वो चाहता है, वो उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने जो अच्छा प्रोडक्शन लिया है वो मेरी मेहनत से लिया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो मैं उसमें क्या है अपनी तरफ से फर्टिलाइजर इनपुट किया, क्योंकि हम सीड तक रुक जाते हैं। अब इतना बड़ा सेगमेंट है कि मैं उनके लिए एक छोटे, अगर एज ए स्टार्टअप हम लोग उनको क्या है, एक छोटे सेगमेंट को भी पूरा बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसके लिए तो टनों में क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम लोग क्वालिटी साथ लेके चलते हैं तो उनको उतना उपलब्ध नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सी बात है ये, बिल्कुल। अगर आपने उपलब्ध से दे सकता हूँ, आप अपनी जो बीज का बोरी है उसमें ये डालिएगा कि आप ये बोरी और उसके छोटा बैग भी डालिएगा जिसमें सैंपल आए। ये सैंपल शायद लेके आइएगा, अंदाजा लगा लीजिए कितना है उसका। एक मिनट उसको बोलिए कि इसका हम आपको कूपन है, ये कूपन में आपको 50 रुपए मिलेगा। सपोज कॉस्टिंग आप उस हिसाब से अपना कर लो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। वो 50 रुपए उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसमें भी क्या हो गया सर, आपका जो सोच रहे हैं, हम 2 तरह के किसान हैं। एक तो अपन जैसे किसान हैं जो लोग क्या है बैठ के सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जमीन है, पर हम लोग उसमें जाके खुद काम करते नहीं है। काम करने वाला हम लोगों ने व्यक्ति दूसरा रखा हुआ है। और वो क्या है, जब एक सीजन की मार होती है ना, जिस समय मान के चलो, जिस समय बोवनी हो रही होती है, जिस समय सोइंग होती है,
वो इतना रस होता है उस समय, ट्रैक्टर तो ये वो सब चीजें इस बात को माइंड नहीं करता कि उसमें तो देखेगा कि 50 रुपए निकालना, उसको ऐसा लगता है कैसे भी करके मुझे अपना काम समय पे कंप्लीट करना है। ये आपकी बात से मैं एग्री, मेरे यहाँ चूंकि मैं खुद ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ, खुद भी जुटता हूँ, आपने अगर 50 रुपए कूपन रख दिया वो फायदा करेगा नहीं, एक काम उसमें काम कर दिएगा, ये 1 महीने में एक्सपायर होगा मोटा मोटा, ताकि रश टाइम उसका निकल जाए। सर वो जान दे देगा 50 रुपए के लिए, आप बात क्या कर रहे हो? ये ठीक। इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ। अगर गलती से, क्योंकि नॉर्मली किसान क्या होता है, सामान ले आता है, घर पे रखता है, घर की बोरी खेत पे खोलता है, सीधे जब यूज करना होता है, शायद मैं सही है सर। वहां पे क्या होता है, अकेले किसान काम नहीं करता, 3-4 लेबर पर कम से कम रखता है जब बुआई का काम। अगर गलती से उसमें 10 बोरी चलने का है ना, तो 2 बोरी की जरूरत हो, 6 बोरी खोल देंगे उनके जो वर्कर्स हैं, क्योंकि ऊपर निकलेगा मैं रख लूंगा। ये मेंटालिटी पुट्टी में एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना? तो अब सवाल ये कि वेस्टेज हमारा बढ़ जाएगा 50 रुपए के चक्कर में। ये तो डिस्कशन का विषय है, आइडिया इज परफेक्ट। तो हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोसेस, दूसरा सोल्यूशन। अगर 6 बोरी खोल भी दे तो इनका फायदा है, नहीं सर, वो इनका कोई नुकसान नहीं है। ये अब किसान भी इतना अकलमंद है, वो फालतू लेके ही नहीं आता, वो बीज थोड़ा कम पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, फालतू तो लाने का मतलब ही नहीं होता। नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। की कहानी में दिक्कत क्या है कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं पोत दे, अब वो कर देते हैं। किसान अपनी चवन्नी बचाने के लिए वो सड़क पे खड़ा रहता है दोपहर में, चाहे वो पानी पिए बगैर बेहोश होकर गिर जाए। सर पता है क्या, एक्चुअली हम लोग जैसे अपने आप पता चलती पटाई की, अपन लोग स्वयं तो कल्टीवेट कर नहीं रहे। जैसे मेरे पास मान लीजिए 60 बीघा जमीन है, तो मैं खुद तो नहीं करता। यस, मैं वही बता रहा हूं, जैसे क्या करता हूं, जैसे इन्होंने बोला ना, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं उसके साथ खड़े होकर सोइंग करा दूं। तो चलिए सर, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। वो 60 बीघे में मान लीजिए आप वो किसान का ही है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आज उसकी आवश्यकता मान लीजिए टेंटेटिवली 5 बोरी की है, 10 बोरी की है, 20 बोरी की है, जो भी हो, वो एक खेत में शाम तक कितना होगा पता नहीं है। डेफिनेटली ऐसी दिक्कत आती है कि एग्रीकल्चर में सीडिंग इज हाई प्रेसिजन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर 20 किलो की जरूरत है, अगर 1 किलो भी एक्स्ट्रा पड़ा तो किसान का नुकसान है, वो कभी नहीं चाहेगा। 19 किलो पड़ा तो प्रोडक्टिविटी जैसा वो चाहता है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मतलब ये तो एक स्टेज की बात है। जो सोइंग के केस में ऐसे सिचुएशन में वेस्टेज को मिनिमाइज करना ये उनकी प्रायोरिटी है, और उसमें थोड़ी सी अभी मार्केटिंग रिसर्च के लोगों की तन्मयता के साथ जरूरत है। डेफिनेटली मार्केटिंग प्रोफेशनल एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े होंगे, दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर साइकोलॉजी ऑफ दीस फार्मर्स। आई थिंक दे वुड बी नोइंग बेटर देन अस, बिकॉज एक्सटेंशन सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी काम करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छे उनके पास रिसर्च डेटा है। दे ऑल विल प्रमोट ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड देन ट्राइंग टू इम्बाइब द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद दैट ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम आल्सो। ये एक बहुत अच्छी चीज है। उसमें आईटी का यूज कर रहे हैं, उसमें अपनी भी थोड़ी जो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उसको भी प्रमोट करते हैं। वो नॉलेज मैनेज जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसमें अपनी जो एग्जिस्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ सोइंग है उसको भी थोड़ी सी ऐड ऑन करते हैं, तो एक्सेप्टेंस वहां पे हो जाता है। अभी इसके लिए जब फार्मर्स एंड की बात करेंगे तो बहुत अच्छा इनपुट हमें एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से और यूनिवर्सिटी से मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम उसमें एक्सपर्टीज नहीं रखते। हाँ, एक बार समस्या का सारा डेटा अगर अपने पास आ जाए, डेटा आ जाएगा तो उसको एनालिसिस करके वी कैन फॉर्मलाइज दिस थिंग कि प्रोसेस इंजीनियरिंग करनी है, कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करनी है, कि टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करनी है, या फिर इसका यूज कैसे करना, ये पूरी चीज हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं वंस डेटा वुड बी कमिंग राइटली अप टू द इनोवेशन लेवल। ये भी एक कमी है। तो ये अब देखिए, नॉर्मली वी यूज्ड टू टीच अ कॉम्प्रिहेंसिव थॉट ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, and farmers of India is a major stake of that particular consumer behavior. Farmer behavior पे कोई एक common book नहीं आता, एक common book नहीं है। Region, whole India is basically segmented in different geographical region, and every geographical region have its own culture, and their culture, their tradition are basically reflected through the farming only. And the crops are also yes, बिल्कुल, क्योंकि आप टेम्परेचर, वेदर, जमीन की क्वालिटी, पानी के सोर्सेज एंड उस हिसाब से सस्टेनेबिलिटी लोगों का सब कुछ वेरी करता है। सबका सारा का सारा आप देखिए, इंडिया का जो भी सेटअप है वो पहले तो नेचर है, दूसरी जमीन है जिससे फूड प्रोडक्शन होता है, उससे खान पान, पहनावा, रहन सहन, कमाने और धंधा करने का तरीका सब कुछ उससे अफेक्टेड है। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन है, एंड इस डाइवर्सिफिकेशन में इसलिए फार्मर्स बिहेवियर पे शायद कॉमन बुक नहीं आ सकती, बट यस देयर इज नीड to the marketing management professional to understand this thing, to collaborate this particular agriculture scientist
and to bring out something in this particular direction. And again, there is need of technologists to collaborate these two professionals to bring out some viable solution at the grassroots level. ये थोड़ा सा मतलब ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट डिस्कस करना ये सर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए बटाईदार जिसको देते हैं वो नॉर्मली गरीब होता है, वो हमसे गरीब होता है, इसलिए हम वो बटाई पे हमसे लेता है, उसके पास लैंड की कमी है, तो इसीलिए उसका वो तो और जरूर वहां खड़ा रहेगा अगर उसमें कूपन निकल रहा है। एक बार तो आप जाओ चाहे मत जाओ, बटाईदार जरूर जाएगा। वो बात सही है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि कूपन वाली फिलॉसफी बिल्कुल काम कर सकती है, एक एरिया में काम कर सकती है, लेकिन ये मैं ट्रायल बेसिस पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक वही फार्मर्स की साइकोलॉजी स्टडी कर ले पहले, इसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन ले। सवाल एक बार एक्शन ले लेंगे तो पीछे नहीं हो सकते, बिकॉज़ उस पे तो इन्वेस्टमेंट गया। वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। तो वही मैं कह रहा हूं ट्रायल बेसिस पे देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे सॉइल टेस्टिंग वाली बात हो रही है, तो फार्मर को अलग से डिवाइस खरीदना उसको कतई 500 रुपए नहीं देगा। हमारे मोबाइल में ही कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, बस ऐप भी कुछ नहीं करेगी। अब सेंसर नहीं हो तो ऐप क्या काम करेगा? तो मोबाइल में पहले बना सेंसर तो लगे केमिकल, एग्जैक्टली, है ना। मोबाइल अब ये पॉलिसी का इशू है कि इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसमें सभी मोबाइल में एक केमिकल सेंसर लगा हो, तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, उस पर ऐप बना देगा, हर आदमी ऐप को डाउनलोड करे, जैसे मोबाइल पास में ले आते हैं सॉइल के पास, उस डेटा कैप्चर करे, उससे डेटा ले और ऐप उसको बेसिकली प्रोसेस करके आगे बढ़ा दे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ऐप से एक ऐप आपने देखा होगा आजकल बहुत उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि आपने उसकी जो पत्तों में रोग लग रहा है, जी हाँ, उसको आप तो भेजेंगे, वो सक्सेसफुली नहीं हो रहा। नहीं, प्लांटिक्स का बोला है, प्लांटिक्स का है जी सर, वो पता बट है ये सॉर्ट हो जाएगा। ये पता नहीं किसका डाउनलोड किया था, उसने काम ही नहीं किया। ये मैटर बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि जब एआई का इवोल्यूशन हुआ ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, तो ये सॉल्यूशन तो ऐप लेवल पे आ जाएगा, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ की एक कोई कृषि मित्र करके हैं, जी मेरी उनसे चर्चा चल रही है, उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर क्लिनिक के नाम से उन्होंने शुरू किया है, तो वो बता रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा किया है, तो मैंने कहा आप आओ किसी दिन, मैंने बुलाया है उन्हें। अभी मैंने कहा मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम होने वाला है अभी इसी में 16 के बीच में, तो मैंने कहा मैंने आप बताओ तो सही कि क्या है क्या नहीं है, जब हम देखें तब समझे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं वो जो एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रिंगिंग एन स्टार्टअप, वो कैरेक्टरिस्टिक कहीं हम भी लैप्स करते हैं। और जब एक नॉर्मली एक स्टार्टअप क्या करता है, अपना पूरा का पूरा फोकस आइडिया के वैलिडेशन, आइडिया के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को डेवलप करने में, अपनी थॉट प्रोसेस को बेसिकली वाइबल बनाने में पूरी लगा देता है, उसके आगे के चैलेंजेस को छोड़ देता है। जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकल रेडनेस लेवल के अंदर देखे थे ना, 3 मेजर कैटेगरीज है, तो फर्स्ट कैटेगरी में ही प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक अपने आप को लगता है कि मैं तो सफल हो गया, लेकिन चैलेंजेस वहां से शुरू होते हैं एक्चुअली। अभी तक तो आपने क्या अपनी ज्ञान गंगा को आपने बिल्कुल समाहित किया है, अब बहाने के लिए, और बहाने की जब बात आती है तो पता चला हर जगह मिल रहा है ना, सेकंड और थर्ड लेवल में, राइट। तो वो समस्या आती है। ये आप देख लीजिए इसको हाइजन ऑफ ग्रोथ, जब किसी भी इनोवेशन पे हम फोकस करते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंटल हो, चाहे वो रेडिकल इन नेचर हो या डिस्ट्रप्टिव इन नेचर हो। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का एक फिनोमिना है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन हम उसको बोलते हैं जब हम एग्जिस्टिंग या फिर न्यू कोई ऐसी चीज लेके आते हैं जो मार्केट की सोच को बदल दे, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। और ऐसी सिचुएशन ऐसी हालात कभी भी कहीं भी पैदा हो सकती है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या जो मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने वाला हो? मोबाइल टेक्नोलॉजी खुद थी, ठीक है। मोबाइल के साथ साथ दूसरी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उसने मार्केट की सोच को डिस्टर्ब किया है। पूरी इंडस्ट्री, पूरे आम आदमी उससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो हम लोग के आंख के सामने के ज्वलंत उदाहरण है जो डिस्ट्रप्टिव की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आती है तो उस डिस्ट्रप्टिव से फिर इंक्रीमेंटल से डिस्ट्रप्टिव, ये चलता रहता है ना। नाउ इट इज अगेन द थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टार्टअप कि वो देखता क्या है प्लस उसके बाद उसकी क्षमता क्या है, दोनों चीजों पे निर्भर करता है। Now, when we'll talk about this horizon of the profitability and in terms of time, then normally हर एक स्टार्टअप जितनी भी आइडिया रखता है, चाहे वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी से निकल के आ रहा है या डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट से निकल के आ रहा हो, इंक्रीमेंटल की ओर जा रहा हो या इंक्रीमेंटल से इंक्रीमेंटल की ओर जा रहा हो, सबसे पहली थ्योरी है ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ये सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ये कनेक्टेड नहीं है, ये इसका मतलब यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मींस यू आर गोइंग टू टेक जंप
and this jump basically cost to a startup and which is basically wastage, है ना। तो कहीं ना कहीं आइडिया, एक आइडिया से दूसरे से तीसरे पे चौथे पे जा रहे हो और एक पे एक्सपेरिमेंट सफल रहा है, सफलता के साथ दूसरे पे मूव करना हो तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होना चाहिए। पेड़ की ब्रांचेस की तरफ निकले, ना कि पेड़ की ब्रांचेस हवा में हो जाए, ठीक है। तो वो उस हॉरिजन की बात कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी स्टार्टअप एंगल से इन कनेक्शन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही मल्टीपल हॉरिजन हो सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये स्टार्टअप जर्नी शुरू और प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे मैक्सिमाइज होती जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है, लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट आपने आइडिया को वाइबल किया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहां तक है, वो धीरे जाकर के मैच्योर हो रहा है, उसकी मैच्योरिटी को खत्म होने से पहले ही आप दूसरे थॉट को फिर से डेवलप कर दीजिए। फिर उसका प्रूफ ऑफ कांसेप्ट देख लीजिए, मार्केट पे फिर प्रोडक्ट लेकर के आइए, इसको भी चलने दीजिए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन, सेकंड प्रोडक्ट लाइन, थर्ड प्रोडक्ट लाइन एंड सो ऑन, एंड likewise your income is almost being cumulated once you are starting new idea from 1 to 2, 2 to 3, है ना। और उसका टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके आगे तक है, यहां से फिर शुरू हो जाएगा नया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने का है। जंपिंग में जो भी एफर्ट आएगा वो वेस्ट होगा। वो जंपिंग का मतलब यू आर अगेन ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द ग्रास रूट थॉट एंड दैट विल रिक्वायर ह्यूज एफर्ट। आपके पुराने एक्सपीरियंसेस नए एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सफलता नहीं देंगे, है ना। एफर्ट का वेस्टेज जाएगा, ठीक है। नाउ टेस्टिंग दी हॉरिजन्स, है ना। ये जो 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इनकी टेस्टिंग के लिए ये स्कोप्स है ना, कि हाउ कैन यू एटलीस्ट प्राइमरली इन कट सी, ये बैठे काम कर सकता है। कोई स्टार्टअप शाम को चाय पीने बैठता है और सोचना शुरू करता है, अगर नए अलाइंड आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो एटलीस्ट इन तीन बातों पे तो विचार जरूर कर लो। क्या है, इज इट वर्थ डूइंग, देन कैन वी विन, देन इज इट रियली रियल। These are some systematic questions relevant to the broader domain of the thinking, and you simply rate your thought, right? If it is certainly, first you check yes, no. If it is yes, then you rate at what extent all these are viable, right? If you are getting maximum high or on, undoubtedly you should go. And normally if you are working on this horizon number 1, यहाँ से कम, यहाँ पे ये थोड़ी सी डिलेमा की सिचुएशन होती है, करे कि नहीं करे। लेकिन जैसे आप इससे कनेक्टेड आइडिया पे काम करते हैं, और ऐसे ही सिचुएशन में इसके रेट्स हमेशा हाई ही आते हैं, सेकंड थॉट के लिए, थर्ड थॉट के लिए, फोर्थ थॉट के लिए, एंड सो ऑन, राइट। दिस इज प्रैक्टिकल फिनोमेना। नाउ लुक एट द प्रूफ ऑफ कांसेप्ट। कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी भी आइडिया को, नॉर्मली दिमाग में पिक्चर आता है कि प्रूफ ऑफ कांसेप्ट हम लेबोरेटरी में करते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल बिजनेस, ये भी एक फिलॉसफी है जिसके लिए लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, राइट। बट एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जरूरत है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट मे बी थियोरेटिकल, इट मे बी स्टैटिस्टिकल, और इट मे बी एक्सपेरिमेंटल इन द लेबोरेटरी, ठीक है ना। उसको पहले वो सेटअप तैयार करते हैं। सेटअप तैयार करने के बाद we usually go for the proving the thought process ki whether it is up to the mark as per the expectation of the customer or as I am thinking or not, ठीक है। क्या ये कहता है, is a presentation that demonstrate the feasibility of a proposed product, method or idea, है ना। proof of concept is basically demonstration of the feasibility of the concept, whether it is product or idea or any possible service, whatever it is, right. And to get it done, we usually look at these steps, these 4 points. Be developed in terms of technology, जो हमारा आइडिया है, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करके जिसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हम डेवलप करना चाहते हैं, वो क्या ये टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है या फिर पास द टेस्ट ऑफ टाइम, क्या ये होता है समय के अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड क्या ये सही में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं करा जा रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स वैलिड हैं तो नॉर्मली ये, जैसे हमने बोला, सोशल सेटिंग में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो क्या वहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी? आज के दिन में जरूरत पड़ेगी। ये आज के कंटेक्स्ट में वैलिड है, कल होता तो शायद ना होता, ठीक है। आज के कंटेक्स्ट में सारे पॉइंट लिखे गए हैं, है ना।
तो ये इन 4 पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। क्या ये टेक्नोलॉजी से ये इनेबल हो सकता है? क्या ये समय के अंदर हम इसको कर पाएंगे? क्या ये मार्केट में सही में जरूरत है या फिर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को मीट आउट करता है? So, फॉर एग्जांपल कोई कैन यू कोट एनी एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेयर प्रूफ ऑफ कांसेप्ट मस्ट फॉलो दैट स्टैंडर्ड? जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं सब एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, पॉलिसी के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी वेरी करता है। फूड्स के जितने भी स्टैंडर्ड है, अगेन दैट कम्स अंडर द सेम स्टैंडर्ड। Quality standard will also come under this one. Yes, Like ISO. yes, definitely. Any standard that is prescribed, if it is prescribed by the government, then your proof of concept should fall within that. Otherwise, वो तो वहीं पे फेल हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा, वो लीगल इशू बन जाएगा, है ना? When does a startup need a proof of concept? This is again very important. A completely new idea अगर उसके पास है तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की जरूरत डेफिनेटली है, ठीक है? एक्सप्लोरिंग वेज टू डिफरेंशिएट योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी एक नया प्रोडक्ट और एक नया उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, यानी पहले प्रोडक्ट से अपने आप को डिफरेंशिएट, दूसरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू नीड अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड मेक और बाई डिसीजन। अगर ऐसा डिसीजन लेना है तो फिर आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की जरूरत है। दोनों में ये समझ में आता है मेक और बाई में डिफरेंस क्या है? Which is better to me? Either I should make myself, or it is better that I should buy then cheapest cost, right? हाँ, then जैसे LED लाइट्स में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो शिपमेंट है वो चाइना से मंगाते हैं अपने ब्रांड नेम से और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करके बेच देते हैं। वो उनको चीप पड़ता है, बनाने की फैक्ट्री डालने की होती नहीं। ये थोड़ी सी अलग चीज है, ये एग्जांपल थोड़ी सी फिट नहीं है। हम दूसरी बात में दूसरे ये एग्जांपल वहां के लिए जो हम बीच में ब्रोकिंग और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं या फिर तो ना, ये लेकिन अलग चीज है। ये हम उस डिसीजन की बात कर रहे हैं कि हमें एक नई एलईडी लाइट मान ली बनानी है जो चाइना से आ रही है, एक लाइट चाइना से आ रही है, एक हम इंडिया में बनाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं 5 मान लीजिए 5 वाट की हम वो लाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो 5 वाट की लाइट हमारे घर को ज्यादा चाइना वाला करता है या फिर हम जो प्रस्ताव कर रहे हैं वो कर रहा है? नंबर 1 तो क्वालिटी का फर्क आ जाएगा। वही उसी बात कर रहा हूँ, वो चीज टेस्ट करने का। दूसरा इसमें क्या इनपुट होगा कि चाइना वाला बल्ब जो है 5 वाट लेने के बाद जितना उजाला करता है तो पावर कम लेता है क्या, या मेरा वाला कम लेता है पावर? दूसरा पॉइंट डिसीजन का। तीसरा पॉइंट डिसीजन, ये फ्यूज हो जाता है तो क्या वो रियूजेबल है कि हमारा रियूजेबल है? तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट, उसका भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, हमारा भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, इसको फेंकेंगे तो एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट डालेगा? उसका ज्यादा नुकसान कर रहा है या हमारा ज्यादा नुकसान कर रहा है? ये कर्स एग्जांपल दे रहा हूं। अब उसको डिसीजन लेना है कि मैं इसको बनाऊं या खरीद के बेचूं। जो सब इन इंडिकेटर्स पे वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा होगा वो उसके लिए फायदेमंद होगा, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले लेगा कि मैं खरीदूं या फिर बनाऊं, ठीक है? ऑब्वियसली वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा अगर उसका ज्यादा वैल्यू कम कॉस्ट पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ये ठीक है, तो वो पिक्चर थोड़ी सी इसलिए इस आइडिया देखना है, ठीक है? नाउ 6th स्टेप टू किक स्टार्ट योर प्रूफ ऑफ कांसेप्ट। व्हाट इज दिस? डिफाइन द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। जैसे हम लोग अभी काफी देर से फॉर्मल वाले पे डिस्कशन कर रहे थे, तो इसको जो करना हो जिस स्टेप पे करना हो वो पूरी चीज सिस्टमैटिकली डिफाइन होनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। फिर उसको थोड़े छोटे टुकड़ों में ये फिर देखना है डिफाइन योर कस्टमर्स पर्सोना। कस्टमर क्या सोचता है इस पे, ये भी बहुत ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है? देन यू थिंक ऑन द आइडेंटिफाई द मार्केट एंड गेट अ रफ आइडिया ऑफ इट्स साइज, ठीक है ना? तीसरा चौथा पॉइंट है लुक एट द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन ऑन द मार्केट एंड एनालाइज देयर ड्रॉबैक्स। दिस इज बेसिकली ओपन द स्कोप टू पोज या टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, है ना? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के जो ड्रॉबैक्स हैं दैट गिव्स स्कोप टू मार्केट योर प्रोडक्ट, है ना? देन लिव द बिल्डिंग एंड टॉक टू योर कस्टमर्स। बाहर निकलिए एक्सपेरिमेंट के बाद, मतलब होता है ना प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के डेवलपमेंट से पहले आपको लगता है कि आपको रियल डेटा चाहिए, आपको खुद निकलना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू टॉक टू द कस्टमर्स whosoever would be going to buy your product finally, है ना? चाहे वो साइंटिफिक कम्युनिटी हो, चाहे वो रिसर्च कम्युनिटी हो, या फिर आपके लिए बिल्कुल छोटा सा कस्टमर हो जो आपको 10 रुपए पर प्रोडक्ट प्रॉफिट देके जाने वाला है, ठीक है? देन स्टार्ट बिल्डिंग एन ऑडियंस अराउंड द फ्यूचर प्रोडक्ट एंड एंगेज विद देम। ये कैसे करेंगे इसको, ये कैसे करेंगे? ये सिंपल ये लाइन कहता है
कि आप अभी से जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए कस्टमर तैयार करना शुरू कर दीजिए, उनको एंगेज करिए, उनसे बात करिए, उनसे डायलॉग करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, ठीक है ना। फिर पिछले प्रेजेंटेशन में हमने बोला था आइडिएशन स्टेज में अगर आपने चर्चा करी तो लीक ऑफ कंसेप्ट हो सकता है कोई कॉपी कर ले, आईपीआर आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के बाद आप मार्केट में निकले, लोगों से फीडबैक ले, फिर उनको एंगेज करें। एंगेज करने का एडवांटेज क्या होगा कि द मोमेंट प्रोडक्ट विल इन द मार्केट डेफिनेटली देयर विल बी ऑलरेडी डिमांड विद यू। आप सर्टेन जैसे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आपने बनाया, आप तुरंत उसका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में फाइनल रियल टेस्टिंग के लिए आप भेज देंगे, है ना। 1000 कस्टमर आपके तैयार है तो 1000 प्रोडक्ट आपको खरीद लेंगे तुरंत, ठीक है। तो आपका जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक जो इन्वेस्टमेंट होगा तो तुरंत निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, फिर फीडबैक आ जाएगा। फीडबैक आने से क्या होगा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिफाइन योर थॉट्स इफ देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम और ग्लिचेज, ठीक है। आप उसको रेक्टिफाई करके फिर आप ब्रॉडर कस्टमर को पहुंच सकते हैं, है ना। फिर सवाल नेक्स्ट आता है कैसे पहुंचे इतने ऑडियंस को। आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ओपन एंडेड है, हर घर में मोबाइल है और हर तरीके को, मतलब जिन कस्टमर्स को आप खोलना चाहते हैं वो कस्टमर आपको अपने आप डेटा भेजता है। हमें एक जूता लेना है तो हम जूता जैसे सर्च करते हैं, कुकीज वहां से इंफॉर्मेशन लेती है, कंपनी जूता वाली भेज देती है जो शूज बनाने वाली है, ये ठीक ना। रिबॉक का हमें शूज लेना है कि नाइक का लेना है या बाटा का लेना है, ये डेटा आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स और उसके पीछे की जो डेटा एक्यूमुलेशन की टेक्निक जो कुकीज जिसे बोलते हैं वो निकालता है और सीधे सीधे कहाँ भेजता है, उन मैन्युफैक्चरर्स के पास भेज देता है या उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजता है जिनके पास इनके प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि कस्टमर आपके पास खुद आना चाहता है, आप तैयार हो, आप मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें, आईटी मीडिया को यूज करें और आप आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाएंगे और कस्टमर आप तक पहुंच जाएगा। मोटी बात है ना, आज के दिन में बहुत आसान हो गया अदरवाइज। और इसमें क्या होगा, ये ग्लोबल ऑडियंस को आप कैप्चर कर पाएंगे बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ कंट्री, ठीक है ना। तो इसकी लेकिन प्लानिंग करनी आपको होगी कि आपको कहां तक पहुंचना है, कितना पहुंचना है। डिमांड आ गया, मान लीजिए डिमांड आपकी प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट देने की कैपेसिटी है 500 यूनिट की, डिमांड आपके पास 50,000 आ गया, क्या करेंगे फिर? कस्टमर को निराश करेंगे। एक बार कस्टमर निराश होगा तो शायद दोबारा आने का सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आज के दिन में ये नहीं सोचना है कि कस्टमर के पास पहुंचे कैसे। आज के दिन में आपको ये सोचना है कि एक बेस्ट मैच कैसे हो कि जो आप दे पाए उतने ही कस्टमर को अट्रैक्ट करें, है ना। क्वालिटी कस्टमर को रिटेन करिए फिर आप, और क्वालिटी कस्टमर तक पहुंचने के लिए इस सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करिए। इसके मैकेनिज्म यू गेट एसोसिएटेड विद सम टेक्नोलॉजिस्ट एंड दे विल गाइड यू इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कि हाउ टू कंट्रोल योर ऑडियंस हु इज बेसिकली आस्किंग फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। Process of creating a proof of concept. This follows this systematic steps from 1, 2, 3, 4 and 5. Define the need, pick the right approach, creating a working proof of concept and prototype, iterate and improve it, create a roadmap for the future. ये तीसरे नंबर से चौथे नंबर, चौथे से पांचवें नंबर, ये एक थोड़ी सी टेडियस प्रोसेस है। टेडियस प्रोसेस क्यों है कि प्रोटोटाइप तो बन गया, ये कोर थॉट का हो सकता है। एक कोर थॉट में अगर एक आइडिया है, एक आइडिया में दो तीन बातें एक साथ हो सकती हैं। एक आइडिया से एक प्रोडक्ट बन सकता है, एक आइडिया से मोर देन वन प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक आइडिया के पहले प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, एक आइडिया से बने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग कंसर्न्स होते हैं स्टार्टअप के साथ। ये उसको सोचना होगा कि मुझे क्या करना है पहले। इसलिए प्रोटोटाइपिंग में उसे क्या क्या लेना है, ये सारी चीजें एक साथ लेनी है या पीस में लेनी है। देन फिर उसके बाद उसको मार्केट में भेजेगा वो इस प्रोटोटाइप को फीडबैक के लिए, कम से कम 1000 आदमी के पास, 100 आदमी के पास। जैसा प्रोडक्ट, जितना महंगा प्रोडक्ट होगा तो 10-20 लोगों से फीडबैक लेगा, सस्ता प्रोडक्ट होगा तो 1000 लोगों से फीडबैक ले, है ना। फिर उसके बाद इटरेट करके फिर से उसको प्रोटोटाइप को रिफाइन करें। तो इसमें इन दोनों चक्रों के बीच में समय लगता है। जब ये दोनों चक्र पूरे हो जाते हैं तो फिर इसमें चक्र टाइम लगता है। फिर जब ये दोनों चक्र पूरे हो जाते हैं तो इन तीनों में समय लगता है। स्टार्टअप का टाइम इस पे जाता है, ठीक ठाक टाइम जाता है। यहाँ से इस सर्कल से बाहर निकलने के लिए इन तीनों पे ठीक ठाक समय देना होता है, ठीक है ना। ठीक है, हाउ द इनोवेशन सेंटर्स कैन हेल्प यू टू मूव फ्रॉम आइडिया टू फाइनली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट।
any startup center, any innovation center supported by government or established by private parties, normally they help to statement में ध्यान रखिए, मतलब ऐसा राइट नहीं है, नॉर्मली वो व्यवस्था करके चलते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को आइडिया असेसमेंट में वो मदद करें, फिर मार्केट स्टडी में वो मदद करें, फिर वो टेक्नोलॉजी के एनालिसिस में मदद करें, फिर रिस्क एनालिसिस में मदद करें, ठीक है, एंड फाइनली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को डेवलप करने में मदद करें। ये पांचों स्टेप फॉलो करते हैं नॉर्मली, और यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये in all the way government is providing sufficient fund to all of us, including our institution, to help all startup, basically from just to be budding entrepreneur by assessing the idea to developing the proof of concept, है ना। तो ये आपके बेनिफिट की चीज है, कहीं भी आपको मौका मिले you should use such kind of centers, right? Should you go through proof of concept? बेटा टाइप बता लो। Should you go through proof of concept? Decision. Yes, you are not sure if the idea can be brought to life, as there are no similar previous projects. Yes, you should definitely go. It makes sense to go through the proof of concept. Otherwise, you decline the thought. है ना? इसको assess करने में कहाँ का assessment करेंगे आप? ये सबसे important, ये जो yes निकल के आया, कैसे निकल के आया, ये तो general statement है. लेकिन practically being entrepreneur, are you targeting local market? Are you targeting state market? Are you targeting national market? Are you targeting global product supply? Initially, definitely you will start from scratch, local market से शुरू करेंगे, वो किसी का भी इन जनरल होगा, ठीक है। एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, इसका मतलब कि you are targeting the retail customers और simple customers. Second aspect, are you trying to R&D institution जिनको आप टेक्नोलॉजी बना के सीधे बेच देंगे आप, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, बाहर नासा हो गया, जापान में हो गया, जर्मनी में हो गई, क्या इन कंपनी को बना प्रोडक्ट देंगे क्या सीधे टेक्नोलॉजी डेवलप करके देंगे? ये भी एक तरीका है। तीसरा हुआ, आप केवल इंडस्ट्री के लिए बनाएंगे क्या, इंडस्ट्री को बना के आप सोल्यूशन देंगे क्या? नाउ इट इज अगेन स्टार्टअप्स ओन डिसीजन that for what purpose they are developing product and where it would be finally go. Based on that, you decide yes or no, right? This is a summary of overall above discussion. Finally, to decide should you go for proof of concept or you should avoid and you should experiment with something else. Yeah. ये देखिए आइडिया टू पीओसी वे है, क्या है, टेस्ट द वाटर विद एन एक्सप्लेनर वीडियोस। ये बहुत ही अहम चीज है आज के दिन में, ये आज के कंटेक्स्ट में। हमें जैसे मान लीजिए एक फ्लेवर्ड जैगरी का चॉकलेट बाजार में ले आना, जैसा सर बना रहा है, अब उसके लिए इनका मार्केटिंग का एक तरीका होगा, ये छोटे छोटे मीम्स बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, उसको बना करके सीधे YouTube पे अपलोड कर दीजिए, ठीक, और कुछ मत करिए। अब सवाल है लोग कैसे पढ़ेंगे, तो लोग कैसे पढ़ेंगे, गूगल सर्च इंजन की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी, वो क्या करता है, SEO की, यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल और भी तरीके के हैं, उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा हिट जिन चीजों का होता है वो सबसे पहले दिखाता है, उस पेज रैंकिंग में सबसे ऊपर आता है ना। तो जैसे ही जैग टाइप करेंगे तो जैगरी, फ्लेवर्ड जैगरी टाइप कर देगा ऑटोमेटिकली और नीचे दिखा देगा, और जो भी कहीं से हिट कर रहा होगा नया आदमी, उसको पहले वो जैगरी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। YouTube में भी वही काम चलता है, YouTube में भी आप जिन चीजों का सर्च ज्यादा करेंगे वो सबसे पहले वीडियो पहले आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मतलब IT प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप इतने हिट वाले हमें मतलब आप SEO पे इतने हिट आप मरवाइए, 2000 हिट, 3000 हिट, 5000 हिट अगर लग गया तो सबसे ऊपर दिखाई देना शुरू करता है। सब्जेक्ट टू hiring such kind of professional services to get the things popularized among the customer, you should be ready to fulfill the demand, क्योंकि जब IT चलता है बीच में तो हाथी है, वो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट नहीं देखता, आपको डिमांड कैटर करके जाके दे देगा, बट यू शुड बी रेडी, है ना। तो ये वो है टेस्ट द वाटर विद एन एग्जांपलर वीडियो, आप उसमें सारी उसकी गुणवत्ता है, जो भी सेलेबल पॉइंट्स है, ऑल द फीचर्स यू कैन एक्सप्लेन इनटू दैट, एंड द जिंगल शुड बी वेरी स्मॉल, है ना, जिंगल ऑफ द वीडियो शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट इट कैन, मतलब कस्टमर कैन डिवोट टाइम ऑफ 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड टू लुक इनटू दैट, है ना।
then you build a demand before you have a product. Then this will be ready, then definitely you would come to this particular point and you assess at what extent you can fulfill the demand of the customer in the market. Then validate an idea. Then you start again working with this. है ना? आपके पास क्या है? पूरी मैकेनिज्म होता है दिमाग में, पिक्चर पूरी दिमाग में होती है. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है? उसको बस विजुअलाइज करने का तरीका है ना? किसी आइडिया को वायबल कैसे करना, पूरा का पूरा तस्वीर आपके दिमाग में होता है. ठीक है, बस आप ये वास्तव में टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि ये सही जो हम सोच रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट इज बेसिकली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करिए आइडिया के साथ, है ना? देन यू इवैल्यूएट एन आइडिया विद क्राउड फंडिंग. यस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्राउड फंडिंग आज के दिन में बहुत पॉपुलर है ना? जब आप स्केल अप करना चाहेंगे, जैसे आपको डिमांड कैटर हो गई, आपको आइडिया की वैलिडिटी इंश्योर होने के बाद जैसे आपने डिमांड क्रिएट कर लिया बाजार से, नाउ यू हैव टू स्केल अप योरसेल्फ. And for that scaling purpose, you need fund. और बैंक पैसा देगा नहीं. बैंक बिना गारंटी के पैसा नहीं देगा. कोई आप उसके पीछे आप क्या गारंटर हो, चाहे आप एक बैंक से दूसरे बैंक डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम को यूज करिए. स्कीम्स आर देयर, बट स्कीम्स आर बेसिकली बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट टेक रिस्क विदाउट गारंटी. तो उनकी अलग मजबूरी है. इवन दो स्कीम इज एग्जिस्टिंग, देन हु विल टेक गारंटी, है ना? तो ऐसा सोल्यूशन है कि आप इनको देखें, है ना? क्राउड फंडिंग को देखें आप. क्राउड फंडिंग में कौन कौन हो सकता है? आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपको जानता हो. आप उससे आइडिया डिस्कस करिए, बोलिए पैसा लगाओ. ठीक है, और छोटे छोटे फंड उठाइए. छोटे छोटे फंड उठाने से क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी. कोई आंख कभी दिखाता तो बोली भाई पैसा ले ली जाइए एक सर्टेन टर्म्स कंडीशन के अंदर, है ना? कोई आपसे कॉपरेट करके चलता है, वो भी फायदे में आप ही फायदे में. रिस्क डिवाइडेड है ना? क्योंकि आपने सबको किसी अपने कंसेप्ट को डिस्क्लोज सबको किया है ना? तो वो उतना ही इक्वली रिस्पांसिबल होगा जितना आप रिस्पांसिबल होंगे. जितने परसेंट का स्टेक होल्डर होगा क्राउड फंडिंग के थ्रू. गेटिंग ओवर. So this is the easiest way to get fund and it is validated now. आप रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है ना? Then you come to the assess demand within landing page. Landing page means ये again it is talking about the use of the information technology कि आप डिमांड को बिल्कुल क्वांटिफाई करना चाहते हैं. तो ये फर्स्ट वीडियो के बाद आप इसको भी बनवा दीजिए, एक वेब पेज बनवा दीजिए, ताकि लोग जिसको इस वीडियो को देखने के बाद इस वेब पेज पे विजिट करेंगे तो एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू सेंस दैट how many customers visited, how many are interested and how many demanded the product, right? So it should parallelly go, right? Then you come up with the final finished product packaging, quality, all the regulatory framework which is required to save this prototype in the form of product basically. And finally talk to the company. This is another very important. अभी इनको वेट कम मिलेगा. क्राउड फंडिंग को वेट कम मिल जाता है. जैसे एक थॉट हमने डेवलप किया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप कर लिया, हमने 10 मित्रों से पैसे उठाए और उसके बाद हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. लॉन्चिंग के बाद रिलायंस ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, टाटा मोटर्स ने हाथ रख दिया, टीसीएस ने हाथ रख दिया कि भाई चलो मैं तुम्हारे में इन्वेस्ट करता हूं. तो इनके कॉन्फिडेंस पक्के हो जाते हैं, है ना? जब इनके कॉन्फिडेंस पक्के होंगे तो वो आपको टीम की तरह सपोर्ट करना शुरू करते हैं. अभी क्या है, वो इन्वेस्टर की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो आपने क्या किया, जैसे ही बड़ी कंपनी से आपने बात किया, आपने इन सबको एसेट बना दिया. अभी क्या है, लायबिलिटीज के तौर पे, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने का है. So this is again a process flow. Introduction of the technical concept. Once how to conduct a proof of concept. करें कैसे? जब proof idea से proof of concept को डेवलप करना है तो उसमें ये प्रोसेस में ये एक्सपेरिमेंट करना है. इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्निकल कंसेप्ट जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिमाग में रहता है. फिर कंडक्ट R&D. आप उसके एक्सपेरिमेंट करिए. एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जरूरी नहीं कि उसका डिजाइन कैसा होगा, दिखाई देगा कैसा देगा. आपको टेक्निकल एस्पेक्ट देखना होगा, टेक्निकल वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखनी है. कि जैसे आपने मेजर किया कि मोबाइल फोन आप बना रहे हैं मान लीजिए, तो उससे वॉइस कितने डेसिबल का निकलेगा, ठीक है? उससे वीडियो कितना साफ दिखाई देगा, उससे उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग पकड़ेगा, ठीक है? इसके लिए जरूरी नहीं कि वो एक मोबाइल के पर्टिकुलर जो छोटा सा डिवाइस है उसके अंदर पैक हो, वो तो पूरी डिवाइस भी होता ना, स्कैटर्ड सर्किट्स भी हो सकती है. बट टेस्टिंग का आउटकम जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो एक्सपेरिमेंटेड होना चाहिए. उस R&D की बात कर रही है. If it is जो भी कंसेप्ट आप लेके चल रहे हैं वो आपको सही में न्यू वायबिलिटी देता है कि नहीं देता है, इसके हर एंगल को देखना जरूरी है. कभी कभी आप सोचते हैं कि इसमें ये होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं
तो रेट थोड़ा सा डेविएटेड मिलता है, उस डेविएशन को भी आपको प्रेस करने की जरूरत है, पॉजिटिवली और निगेटिवली। निगेटिव है तो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, पॉजिटिव है तो बाजार में बेचने लायक है तो उसको बेचे कि नहीं बेचे, ये देखने की जरूरत है। ठीक है, इफ इट इज यस, build a proof of concept based on experience and knowledge, and is the concept feasible, या feasibility दिख रही है, then you basically yes, आप इसको यहाँ पे आके implement the concept. Otherwise if it is no, then ये अगर पुराना है, पुराना काम हुआ है, मतलब आपने जो कंसेप्ट लिया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये पुराने काम को देखिए, मतलब आपकी कंपनी में भी हो सकता है, किसी कंपनी में भी हो सकता है, आप फिर से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए implementation of the concept is very important, right? So you simply follow this phenomena along with your existing innovative products. भले ही नया आपका आइडिया इनोवेटिव न हो, लेकिन अगर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, आपकी पुरानी इनोवेटिव आइडिया के साथ अगर वो इम्बाइड होकर के मार्केट में आपको और वैल्यू एडिशन देता है, कस्टमर अट्रैक्ट करने में मदद करता है, बेटर यू गो विद दैट। ठीक है, और आइडिया अगर वाइबल नहीं है तो बेटर उसको प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए आप, है ना। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल वे। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी काम आपने किया है ऊपर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए, documentation of that particular phenomena should be definitely there in the company. If it is not, then you won't be able to cater all the positives, all the negatives to the stakeholders. Stakeholders में आपके investors भी हो सकते हैं, stakeholders में आपके customer भी हो सकते हैं, तो इनको document करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और documentation का बेस्ट तरीका ये है, you jot down all the things on a plain paper, try to attach in a file on daily basis whatever your findings would be, है ना। इसीलिए प्लेन है ना, प्लेन पेपर की बात करिए और उसको एड ऑन कर दीजिए। द मोमेंट proof of concept is ready, then you prepare complete full proof concept based on this documented data, right? So this is three simple way to developing the document of the proof of concept, right? Identify your success criteria and prove the need, documented होना चाहिए। Prepare a list of core features that is sellable in the market, वो आपके document में होना चाहिए। Get the feedback on the feasibility of each of these features and their risk, मार्केट से जो फीडबैक आ रहा है उसका भी डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट की वर्जनिंग करने में और एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में आने में मदद करता है ना, क्योंकि वही फीडबैक आपको, क्योंकि हर फीडबैक को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू आता है। आप इससे पता कर सकते हैं कि 500 रुपए का सामान है 600 में बेचे, 700 में बेचे या 500 में ही बेचे। ठीक है, वो फीडबैक वहां पे कमर्शलाइज किया जा सकता है। ठीक है, so this is simple journey from moving. Once your proof of concept is ready, prototype is ready, तो हम छोटा सा एक बनाते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कोर प्रोडक्ट के फंक्शंस को हाईलाइट करता है। सप्लीमेंटिंग फंक्शन को हाईलाइट करने की बातें बाद में करेंगे, वो प्रोडक्ट की वर्जनिंग में है ना। कार की हम बेस मॉडल तैयार करते हैं पहले, ठीक है, तो ये बेस मॉडल है ना। इसके बाद एड ऑन फीचर देकर के हम एडवांस वर्जन देते जाते हैं, मतलब सेफ्टी, कंफर्ट, है ना, प्लीजेंट, एस्थेटिक, ये सारे अलग अलग चीजें जो प्रोडक्ट को सुंदर, वाइबल और टिकाऊ बनाने की बात करता है ना। लेकिन हम मिनिमम जो कोर फीचर्स है, गाड़ी स्पीड 180 की ले सकती है कि नहीं ले सकती, ये कम फ्यूल कंज्यूम करता है कि नहीं करता है, प्रॉपर ब्रेकिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसेंशियल फीचर्स, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाते हैं विद एसेंशियल फीचर्स। सर प्रोटोटाइप में उसमें डिफरेंस क्या ज्यादा है? ये प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट, ये प्रोडक्ट मैं ये चलता है कि प्रोटोटाइप में वो लगभग वो मतलब मार्केट रेडी प्रोडक्ट ही लेके आते हैं, वो लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, पैकेजिंग नहीं होती इसके अंदर, प्रोटोटाइप के अंदर। इसके अंदर कंप्लीट प्रोडक्ट जो बाजार में कस्टमर फील करता है, ये वो है ना। इसके अंदर क्या है, वो चीज भी जरूरी नहीं होती एक चिप पे ऑर्गेनाइज हो, ये अनऑर्गेनाइज फीचर है, ये ऑर्गेनाइज फीचर है, ये पैकेज फीचर है, ये तीनों में डिफरेंस बेसिक ही है ना। So this is a simple journey moving from analyzing the end users pain points, जिसको आपने आइडिया में कन्वर्ट किया है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, फिर आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्रिएट किया है, फिर फीडबैक लिया और फाइनली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को वाइबल कर दिया और मार्केट के लिए आपने MVP बना दिया। ठीक है, क्यों रीजन फॉर राइटिंग द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बेसिकली minimizes the wastage, it attract the more funding, it helps to attract the more funding, it helps to better planning and fewer जो hurdles रास्ते में आने वाले हैं
उनको ये मिनिमाइज कर देता है ना। एंड ठीक है, हम आगे 8 स्टेप्स ऑफ इंश्योरिंग द पीओसी सक्सेस, कैसे प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के सक्सेस को इंश्योर करने के लिए ये 1 2 3 4 सारे सिनेरियो दिए हुए हैं, ठीक है, इसका क्लिक ले सकते हैं। एडवांटेज ये है, क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल फिलॉसफी बिहाइंड द प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, आइडिया वायबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ द कांसेप्ट, लिमिटेशन, ये आप यस बहुत जरूरी है। लिमिटेशन हमेशा एनकाउंटर किया जाता है फ्यूचर में, लिमिटेशन हमेशा एनकाउंटर किया जाता है। ये रेडिकल इनोवेशन से भी कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल इनोवेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज वंस योर पीओसी इज रेडी देन इट विल बी हेल्प टू असेस द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जब तक ये बनता नहीं है तब तक आगे फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सिंपल डिफरेंस है पीओसी एंड प्रोटोटाइप के अंदर। एंड दिस इज सिस्टमैटिक मूविंग फ्रॉम unorganized, organized and aesthetic based product design, from idea to product to the market, and this is basic difference between these three: proof of concept, minimum viable product, and prototype. And I think this is basically last slide, है ना? So this is all about the POC. If you have any queries, then please come forward. सर मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई है उसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एक प्रोडक्ट खरीदा, एक स्टार्टअप ने बनाया था, उसमें क्या था कि मैं अपने ट्यूबवेल को मोबाइल से ऑपरेट कर लेता था, कहीं से भी ऑन कर लूँ ऑफ कर लूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वो इनिशियली लगभग 6,000 का कॉस्ट का था, मैंने ले लिया कि भाई दोपहर में कौन जाएगा या रात के 10 बजे कौन जाएगा, लाइट का अब तो चलो फिर भी यूपी में बिजली ठीक, उसमें बिजली भी खराब थी। अब वो खराब हो गया तो दिक्कत है कि आफ्टर सेल सर्विस नहीं। Yes, right. और एक सर की बात करते हैं, एक मिनट सर, आपने जो बोला ना, मेरे एक कजिन है वो यूपीएल में है, तो उनके संग भी वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बहुत परेशान है। तो मैंने उनको ये बोला, अब दिक्कत है कि कंपनी ने टारगेट दे रखा है उसको कि भाई इतनी तो सॉइल टेस्टिंग करके तो देनी है, नौकरी से निकाल देंगे। उसके संग प्रॉब्लम प्रोडक्ट सेल की नहीं थी, उसके संग प्रॉब्लम वही थी जो आपने बताया कि वो किसान अपना सॉइल के लिए नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं देगा। हाँ, तो उसने फिर उसको मैंने बोला कि भाई देख तू देख ले तेरे को कहाँ पे कितना पैसा बचता है ना, अपनी जेब से देना पड़ जाए थोड़ा बहुत। तो अगर मान लिया उसकी सैलरी 50,000 है, मैं कह रहा हूँ मान के चलते सैलरी 45,000 है, 5,000 तो लेके चले। तो उसमें उसने बोला कि आप अपना सैंपल दो, मैं करा के दूंगा, और नेक्स्ट बाइंग में उसने अपनी तरफ से कूपन बना के दिया कि आप ये इतना रिबेट ले लेना, उसने दुकानदार को बोल दिया। अब मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं, बाद में उसने अपनी जेब से भरा है कि कंपनी से किसी दूसरी स्कीम में ले लिया। तो उनके पास यूपीएल एक बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग लगा रखे हैं, तो उसने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली। तो ऐसे ही मेरा मानना है, अगर ये कूपन डालेंगे तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। मार्केटिंग टीम कैन डिवाइस वंडरफुल स्कीम, देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम सब्जेक्ट टू कस्टमर 1 रुपए देने को तैयार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि कस्टमर पैसा देना नहीं चाहता। अब डिफरेंस होता है कि अगर हमें टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरत है तो मैं किसी भी कीमत पे खरीद लूंगा। हाँ, नेसेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा, जैसे पहले आपको पता है हगीज को इस्तेमाल ही नहीं करता था, आज के टाइम में बगैर हगीज के तो नहीं सकता। अगर गलती से आपने कहा तो शादी टूट जाएगी, सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि सस्टेन करने वाली बातें हैं। अब यही कंपनी को एस्टिमेट इसी बात का करना होता है कि कितना देर बाजार में सस्टेन कर सकती है। जो कंपनी बाजार में सस्टेन करती है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। लेकिन सवाल ये, अगर प्रोडक्ट सस्ता हुआ और प्रोडक्ट में क्वालिटी एट पार बस एवरेज रहा तो दूसरे कंपटीटर इनके बनाए हुए बाजार को खाया, है ना। तो इसके लिए, लेकिन उससे नुकसान इनको नहीं है। कस्टमर में वो भी अवेयरनेस फैलाएंगे, हम भी अवेयरनेस फैलाएंगे। ये कॉम्पिटिटिवनेस तो बाद में आएगी जब पूरे के पूरे कस्टमर सेगमेंट हो जाएंगे, है ना। 1 करोड़, मान लीजिए टोटल कस्टमर 1 करोड़ है, इसको 1 करोड़ कस्टमर का स्कोप है। शुरू में 10,000 कस्टमर नहीं है, 50 कंपनी उधर आए, 10,000 से पहुंचते 90 लाख पहुंचेंगे, तब ले जाकर के कंपटीशन शुरू होगा। तब होगा कि हम उनकी कंपनी के कस्टमर तोड़े, तब वहां पे कास्ट बार्गेनिंग शुरू होती है, प्राइस बार्गेनिंग शुरू होती है, डिमांड सप्लाई में प्राइसिंग सेट होती है। लेकिन अभी स्कोप सबके लिए है, तो शुरू के 2-4 साल 5 साल ट्रांजिशन पीरियड में लगता है। कितनी भी आप स्कीम लगा लीजिए, लेकिन ये मार्केट की मैच्योरिटी, इकोनॉमिक्स जो थ्योरी वो थ्योरी है, वो वैलिड है, तो लगेगा इस समय, है ना। तो इसलिए बहुत सोचना चाहिए उसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैक्सिमम पेस ऑफ अवेयरनेस को 10 साल से डिक्रीज करके 2 साल कर सकती है, लेकिन उतरे तो सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट छोड़ के भागे। एक चीज और भी देख सकते हैं, मैंने अपने बेटे से कहा भाई क्या खरीद रहा है,
इसमें तो क्वांटिटी कम है और रेट ज्यादा है, हाँ। तो उसने बोला इसके अंदर छोटा सा खिलौना निकलता है। आप मजाक नहीं, ये मेंटलिटी बता रहा हूँ। वो बच्चे वो वाला प्रोडक्ट है जिसमें छोटा खिलौना निकल रहा है, किंडर जॉय। हाँ वो जो भी एक्सपेक्टेड आई डोंट नो, ठीक है, वो उस खिलौना उसके लिए लालच, ऐसे किसान के लिए लालच, वो कूपन ही है। कूपन ही है, राइट, बिल्कुल। वो कुछ ना कुछ है। अब जैसे आपने वो 6000 के प्रोडक्ट को खरीदा, हाँ, इज इट रियली वायबल? उसकी कीमत अगर डेवलपमेंट एंड पे जाएगी तो कीमत आती है 120 रुपए के आसपास। नहीं क्योंकि उसमें फोन सेट भी था, अच्छा। नोकिया का एक पर्टिकुलर, मैं भूल ठीक गया, है, हाँ, ठीक है, वो तब भी तो उसमें साथ में था, एक सिम भी साथ में था, हाँ, ठीक है, तो मुझे 6000 की दिक्कत कोई इशू नहीं नहीं थी। है। वो मुश्किल से 3 महीने चला, 3 महीने बाद वो खराब हो गया, अब मेरे लिए वो वेस्ट हो गया। बिल्कुल। क्योंकि लोकल मार्केट में कोई उसको रिपेयर करने वाला नहीं। कोई सेंसर ही रिप्लेस होगा क्योंकि सेंसर नहीं है। हाँ, है ना? और दूसरी आपका तो ऐप, हाँ, सेंसर एक वहाँ लगा हुआ है ट्यूबवेल पे, जो वाईफाई से कनेक्ट होगा। वो मोबाइल सारा वो स्विचिंग सिस्टम उस ट्यूबवेल के पास लगा होगा। वो ट्यूबवेल में जो मोटर होती है वो उसी में लगा था सारा, बिल्कुल, बिल्कुल। फोन भी और वो भी, सब कुछ वहीं लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो बस उससे उसके फोन के अंदर जो सिम है, वो सिम को जब मैं अपने फोन से डायल करता था, उसके अलावा तो उसमें ही वो कहता था अगर मोटर चलानी तो एक दबा दो, बंद करनी तो 2 दबा दो, अगर लाइट नहीं आ रही तो बता देता था लाइट नहीं आ रही है। अब मान लिया एक फेज में लाइट एक में नहीं, तो खुद बता देता था कि एक फेज में लाइट है एक में नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देता था वो। ये एक्सपेरिमेंट करके इसको रिफाइन करने की जरूरत है, इससे कॉस्ट भी रिड्यूस है, तो बहुत सारी नई चीज आ गई। हाँ, लेकिन दिक्कत ये कि वो तो जिसने मुझे बेचा, हाँ, वो उसने नौकरी छोड़ दी वहां से, बाद में समझा वो कंपनी बंद हो गई, गुजरात की कंपनी थी, अब मेड में वो बेच रहा था। आप समझिए, ये है सस्टेनेबिलिटी मॉडल। वहाँ पे आके फेलियर के पीछे ये हम सब लोग यहाँ पे करीब इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हमें इस बात की स्टडी करनी चाहिए कि जो फेलियर के पीछे इनको हमें ये असेस करें कि ये स्टार्टअप ऐसा है, 10 स्टार्टअप है तो ये तो स्टार्टअप सफल हो जाएगा दिख रहा है, लेकिन 9 स्टार्टअप है तो किस स्टेप पे जाके फेल होने वाली है हमें पहले बताना पड़ेगा, तो है ना, ताकि वो शुरू में सोच ले कि या तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाए या फिर जीरो में आ जाए, या अपनी एनर्जी वेस्ट न करे, रिसोर्सेज वेस्ट न करे, है ना। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your valuable presentation. Now it's time for high tea. Please collect your coupon for registration tags. We will meet after 15 minutes. Same place.